غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ طارق بن زیاد کو تلویرہ میں موسیٰ بن نصیر کا پیغام ملا کہ تلیطا پہنچو۔ طارق تو جیسے اسی حکم کا منتظر تھا، اس نے اسی وقت اپنے محافظ دستے کے چند سواروں کو ساتھ لیا اور تلیطا کو روانہ ہو گیا۔ اس نے مال غنیمت کی جو قیمتی اشیاء اور حلیفہ کو تحفوں کے طور پر دینے کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں وہ اس کے ساتھ حجروں پر لدی ہوئی آ رہی تھیں۔ اب طارق سیدھے راستے سے آ رہا تھا، وہ بہت ہی تیز آ رہا تھا۔ اس نے بہت کم پڑاؤ کیے اور کچھ دنوں بعد تلیطا پہنچ گیا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اسی طرح آیا ہے کہ طارق شہر کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دے دی گئی کہ طارق آ رہا ہے۔ موسیٰ فوراً اٹھا اور ہنٹر یعنی کوڑا ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ طارق نے موسیٰ کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر موسیٰ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے اس توقع پر بازو پھیلائے ہوئے تھے کہ موسیٰ اس کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا لے گا اور اس کا منہ چوم کر اسے خراج تحسین پیش کرے گا، لیکن دیکھنے والوں نے عجب منظر دیکھا اور یہ منظر تاریخ کے سینے پر نقش ہو گیا کہ موسیٰ بن نصیر نے چمڑے کا کوڑا سیدھا کیا اور گھمایا۔ جو ہی طارق قریب آیا، موسیٰ نے پوری طاقت سے کوڑا طارق کو مارا۔ طارق جیسے بے جان بت بن گیا ہو، جیسے وقت ایک مقام پر رک گیا ہو۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے جن کا شور سنائی دے رہا تھا، وہ چپ ہو گئے۔ ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے درختوں پر چہچہاتے پرندے بھی چپ ہو گئے ہوں۔ نافرمان موسیٰ بن نصیر کی گرجدار آواز نے سکوت توڑا اور طارق کو ایک اور کوڑا مار کر موسیٰ نے کہا، میں نے حکم دیا تھا کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا۔ موسیٰ نے ایک اور کوڑا مار کر کہا، اور تم سارے ملک کو فتح کرنے چل پڑے، میرے حکم کی پرواہ ہی نہ کی۔ طارق بن زیاد خاموشی سے کھڑا کوڑے کھاتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر اسے کوڑے مارے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے موسیٰ درخت کے تنے کو کوڑے مار رہا ہو۔ میں تمہیں سپاہ سالاری سے معزول کرتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے فیصلہ سنایا اور اپنے ساتھ کھڑے سالاروں کو حکم دیا، اسے قید خانے میں چھوڑاؤ، میں اسے آزاد نہیں دیکھنا چاہتا۔ 2 سالار آگے بڑھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا بائیں طرف ہو گیا۔ دونوں نے اس کے بازو پکڑے اور وہاں سے لے گئے۔ ہمیں معاف کر دینا ابن زیاد، راستے میں ایک سالار نے طارق بن زیاد سے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، امیر موسیٰ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے سالار نے کہا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں میرے رفیق کو۔ طارق بن زیاد نے صبر و تحمل سے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، ورنہ میں بربروں کو اشارہ کر دوں تو عربوں کا کہیں نام و نشان نہ ملے۔ مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ بربر میری اتنی زیادہ توہین برداشت نہیں کریں گے۔ میں اگر قید خانے میں بند رہا تو بربروں اور امیر موسیٰ اور تم میں سے کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا۔ طارق بن زیاد نے تو خدشے کا صرف اظہار کیا تھا، یہ خدشہ عملاً سر اٹھا رہا تھا۔ یہ خبر تلیطا میں مقیم تمام تر لشکر میں پھیل گئی کہ امیر افریقہ نے آدھے سے زیادہ اندلس فتح کرنے والے سپاہ سالار طارق بن زیاد کو باہر میدان میں لوگوں کے سامنے کوڑے مارے ہیں۔ کیوں؟ سپاہ سالار کا جرم کیا تھا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کچھ افواہیں تھیں جو لشکر میں گھومتی پھرتی اور ایک دوسری کی تردید کرتی رہیں۔ تلیطا کے لشکر میں تقریباً 90% بربر تھے، وہ مشتعل ہوتے جا رہے تھے۔ فوج کا عہدیدار طبقہ تو زیادہ ہی غصے میں تھا۔ طارق تلویرہ میں جو لشکر چھوڑ آیا تھا تقریباً سب بربر تھے۔ تلیطا کے لشکر میں یہ آوازیں سنائی دینے لگیں کہ جو بربر آگے چلے گئے ہیں ان تک یہ خبر پہنچا دو۔ بغاوت کا سب سے زیادہ
ज्यादा खतरा तो तारक बिन ज़ियाद की तरफ से था, जिसे उस कैद खाने में डाल दिया गया जहां उसके हुक्म से उंदलस की फौज के चंद एक जर्नैलों और उनसे कम दर्जा ओहदेदारों को बंद किया गया था। वो सब वहीं थे और उन्होंने तारक को कैदी के रूप में देखा। उन्होंने तारक का मजाक उड़ाया था। कोई नहीं बता सकता कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। वो खामोश था। न अमली तौर पर उसने किसी रद्दे अमल का इजहार किया, न उसके चेहरे से पता चलता था कि उसका रद्दे अमल क्या है और क्या होगा। यहाँ मोरहों में इख्तलाफ पाया जाता है कि तारक बिन ज़ियाद को रिहाई किस तरह मिली। मारूफ मोरहों, सिपर नगर, लैन पोल और डोजी ने लिखा है कि मूसा बिन नुसैर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क को इतला देने के लिए एक कासद को दमिश्क भेजा। खलीफा ने हुक्म भेजा कि तारक को सिपा सलारी पर बहाल कर दिया जाए। 3 मोरहों ने लिखा है कि तारक ने कैद खाने के अंदर से ही ऐसा खुफिया इंतजाम कर दिया कि उसके हुआहों ने एक आदमी को दमिश्क रवाना कर दिया। इस आदमी के सपुर्द ये काम किया गया था कि खलीफा से मिले और उसे तारक बिन ज़ियाद की फतूहात की तफसील सुनाए, फिर उसे बताए कि मूसा बिन नुसैर ने तारक को सरेआम कोड़े मार कर न सिर्फ माजूल किया है बल्कि उसे कैद खाने में फेंक दिया है। इस आदमी ने खलीफा से ये भी कहना था कि तारक के साथ ये सलूक इसलिए किया गया है कि वो बर्बर है और मूसा चाहता है कि उंदलस में बर्तरी अरबों को हासिल हो और उंदलस की फतह का सेहरा मूसा अपने सर बांधना चाहता है। इन मोरहों में से एक ने लिखा है कि जिस आदमी को दमिश्क भेजा गया था उसे इस काम की रिश्वत दी गई थी। वो दमिश्क गया और खलीफा से तारक बिन ज़ियाद की रिहाई और बहाली का हुक्म ले आया। ये दोनों बातें गलत मालूम होती हैं। दूसरे मोरहों ने, जिनमें कोंदे और स्कॉट खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, काबिल कबूल और काबिल फहम दलाइल देकर साबित किया है कि न मूसा ने कोई कासद खलीफा को इतला देने के लिए भेजा था, न तारक ने किसी को रिश्वत दी और अपनी रिहाई का खुफिया इंतजाम किया। ये मोरख कहते हैं कि घोड़े पर तुलीता से दमिश्क जाने और वापस आने में कई महीने लगते हैं, लेकिन तारक की माजूली के कुछ ही दिनों बाद तारीख हमें बताती है कि मूसा बिन नुसैर और तारक बिन ज़ियाद इकट्ठे एक लश्कर की क़यादत करते हुए पेश कदमी करते हैं और फ्रांस की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। ये तो तस्लीम किया ही नहीं जा सकता कि तारक बिन ज़ियाद ने किसी को रिश्वत देकर दमिश्क भेजा था। तारक के किरदार में किसी गलत हरकत का नामो निशान भी नहीं मिलता। उसके किरदार की बुलंदी का सबूत ये है कि उसने अपने अमीर से कोड़े खा लिए और चुप रहा। अगर वो गलत हरकत पर उतर आता तो वो वहीं बर्बरों से मूसा बिन नुसैर के खिलाफ बगावत करा देता। बर्बर गालिब अक्सरियत में थे। वो एक दिन में अरबों से हथियार डलवा कर पूरे उंदलस के फातेह हुक्मरान बन जाते, लेकिन तारक ने ऐसा इकदाम सोचा ही नहीं। एक यूरोपी मोरख बाज़ोत स्मिथ ने अरबी मोरहों और उस दौर की कुछ गैर मतबूहा तहरीरों के हवालों से लिखा है कि तारक बिन ज़ियाद ने किरदार की बुलंदी का मुजाहिरा तो किया, लेकिन मूसा बिन नुसैर किरदार का कोई घटिया आदमी नहीं था। तारक मूसा को अपना बाप समझता था तो मूसा तारक को अपना बेटा समझता था। मूसा का गुस्सा ज्यादा दिन न रहा। ये मामला इस तरह रफा दफा हुआ कि मूसा को उसी रात इतला दी गई कि लश्कर के बर्बर अरबों के खिलाफ भड़के हुए हैं और किसी भी वक्त वो एहतजाज को किसी संगीन कार्रवाई का रंग दे सकते हैं। ये खतरा इस तरह भी बढ़ सकता है। मूसा को बताया गया कि बर्बरों ने अरब अमारात मूसा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। अगर किसी अरब सलार, ओहदेदार या किसी भी अरब ने बर्बरों को कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी और गलबा बर्बरों का होगा। बर्बर मुजाहिदीन तारक बिन ज़ियाद को अपना मुर्शद मानते हैं। अमीर मिस्र अफ्रीका जोलियन ने मूसा बिन नुसैर से कहा, आपके मामूलात और फैसलों में हम दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने और ओपास ने जिस तरह आपकी फौज की रहनुमाई की है और जिस तरह ओपास ने अपनी जान को खतरे में डालकर गोथों और यहूदियों को राड्रक की फौज से न सिर्फ अलग किया बल्कि राड्रक की फौज के खिलाफ लड़ा दिया था, इस सिले में हमें हक मिलना चाहिए कि हम आपके फैसले के खिलाफ अपनी राय दे सकें। काबिले एहतराम अमीर ओपास ने कहा, अगर ऐन मैदाने जंग में हजार हा गोथ उधर से इधर तारक के पास ना आ जाते तो गदलीत की जंग का फैसला कुछ और होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जंग गोथों ने जीती थी। फतह बहरहाल तारक की अक्लो दानिश और जुर्रत का नतीजा है। तारक की जगह कोई कमजोर जर्नैल होता तो उसे इससे दुगने गोथ मिल जाते, तो भी वो राड्रक को शिकस्त ना दे सकता। राड्रक जैसे काया और तजुर्बाकार जर्नैल को तारक बिन
ज्यादा ही शिकस्त दे सकता था। आप ऐसे कीमती आदमी को जाया ना करें, जोलियन ने कहा। अमीर मोहतरम, सलार मगीसुर रूमी बोला, असल खतरा तो बर्बरों की तरफ से है। आपको इतला मिल चुकी है, लेकिन ये इतला नामुमकिन है। बर्बर सिर्फ बातें नहीं कर रहे, ये लोग अमलन भी कुछ कर गुजरेंगे। आप इनकी फितरत से वाकिफ हैं, मैंने इनकी क़यादत की है। मैं जानता हूँ कि मैदान जंग में इन्हें काबू में रखना कितना दुश्वार होता है। ये लोग भागते नहीं, पसपाई की बजाय मौत कबूल कर लेते हैं। दुश्मन को सामने देखकर बाउले हो जाते हैं। दुश्मन को चीरे फाड़े बगैर इनकी तस्कीन नहीं होती। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बगावत पर उतर आए तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। उंदलस की फौज उनके साथ मिल जाएगी। फिर होगा ये कि ना हम रहेंगे और ना बर्बर रहेंगे, और हाथ आया हुआ उंदलस हमसे छिन जाएगा। मैंने रातों को छुप छुप कर इनकी बातें सुनी हैं। मैं आपको खबरदार करता हूँ कि तारक को रिहा और बहाल न किया गया तो बर्बर अमली इकदाम पर उतर आएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अरब ओहदेदार और मुजाहिदीन भी तारक की मजूली पर खुश नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारक ने आपका हुक्म क्यों नहीं माना था। सलार अबू जोया तरीफ ने कहा, ये मैं तुम्हारी जुबान से नहीं तारक की जुबान से सुनूंगा। मूसा बिन नुसैर ने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं इन खतरों को नहीं जानता जो तुम मुझे बता रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम अमीर की हुक्म अदुली को माफ नहीं करता? क्या तुम मुझे अहमक समझते हो कि मैं तारक की फतूहात पर मट्टी डाल दूंगा और उसके कारनामे अपने नाम लिख लूंगा? अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने क्या किया है। मैंने आज के लोगों को, कल के लोगों को, इनके बाद पैदा होने वाले लोगों को अपने अमाल नहीं दिखाने, अल्लाह के हुजूर अपना अमाल नामा पेश करना है। तारक को आज का दिन और आज की रात कैदखाने में पड़ा रहने दो। कल सुबह उसे मेरे पास ले आना। हमने आगे जाना है। आगे फ्रांस है। मैं मालूम कर चुका हूँ फ्रांस की फौज उंदलस की फौज से बहुत ज्यादा बेहतर और बेजिगरी से लड़ने वाली फौज है। मोहतरम अमीर, मगीसुर रूमी ने पूछा, बर्बरों को ये दिन और ये रात कैसे ठंडा रखा जाए? इन्हें बता दो। मूसा ने कहा, बल्कि बाकायदा ऐलान कर दो कि तारक की सजा या रिहाई का फैसला कल होगा। मोरहों ने लिखा है कि लश्कर में जब ये ऐलान हुआ तो बर्बरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, जो दरअसल नारे नहीं बल्कि अल्टीमेटम था। फैसला रिहाई का हो। हम तारक की रिहाई चाहते हैं। हम तारक के साथ आए थे, तारक के साथ ही जाएंगे। हम वहीं जाएंगे जहां तारक होगा। हम कश्तियां जला आए थे, उंदलस का सब कुछ जला कर जाएंगे। तारक नहीं तो हम भी नहीं। मूसा बिन नुसैर को बर्बरों के इस रद्द अमल से आगाह कर दिया गया।